Hello, very good afternoon to each one of you. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I am your host for today. So, I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji Ke Saath Guruvar 2.0 that we started on 10th of April 2025 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. So, first of all, I would like to say a few words about PHF. PHF, that is Promisolon Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat Namole sir with the vision to educate homeopaths and to transform GPs to homeopathy again. And sir is successful in transforming more than 2000 GPs towards homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach to maximum homeopaths who are not able to practice homeopathy due to lack of proper guidance. Ignited Minds by PHF is the pioneer group of free learning of homeopathy, first started on WhatsApp and then on Telegram. Now about 3000 doctors are learning daily on Telegram group. Recently, we completed pre-webinar series of 100 lectures on Zoom, which are available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. And friends, this is our session number 122, and I feel happy and blessed to welcome today's speaker. We are introducing a new speaker, a new face from PHF. So, Dr. Arwa Chinikamwala from Nashik. She is basically from Nashik and now practicing in Pune. She is classmate of our Guruji, Dr. Liaquat sir, and Dr. Manisha Kapoor Soni madam. So we are blessed to have you, madam, today. And a little introduction about madam. Madam is has passed from National Homeopathic Medical College, and she is practicing since 30 years now. She was first practicing at Nashik, then went Abu Dhabi, and after that she later she shifted to Abu Dhabi, and after clearing her exams in UAE, she practiced homeopathy, and now she has thousands of patients from all over the globe, we can say, from India, Nashik, Pune, as well as from UAE. So it's a great pleasure to have you today, ma'am. So friends, let us welcome Dr. Arwa Chinikamwala, ma'am, from Pune. Thank you, Welcome, Mansi. ma'am. So warm. Thank you so much, Mansi, for this warm welcome. And it is my pleasure to present. It is the first time I'm presenting. So it is my pleasure to be on this platform, with all the eminent doctors. Thank you so much for giving me this platform. Welcome. Over to you. Should we start, Mansi? Yeah. Yes. Should I start sharing my screen? Yes, yes. Okay, okay. So thank you so much for this opportunity and welcome everybody on this platform. हम केस के बारे में बात करेंगे और हम अनकॉमन फैसेट्स जो कॉमन रेमेडीज है उसके बारे में हम बात करेंगे आज. ठीक है, तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, ma'am. Is everybody able to see the screen? Yes, yes. ओके. तो सबसे पहले तो इट इज ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, जिन्होंने द वन मतलब जो हम आज यहाँ पर है वो उनकी वजह से है. और फिर हमारे मेंटोर है डॉक्टर लियाकत सर, लियाकत नामोले. वो मेरे क्लासमेट भी है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं. बहुत मतलब हमने साथ में जर्नी की है. और फिर हमने इंडिविजुअल डॉक्टर मनीषा कपूर है, मनीषा सोनी है, जो जो और एक पीएचएफ से हैं. और फिर डॉक्टर मानसी, ऑल ऑफ देम एंड ऑल माय टीम मेंबर्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. So this is the first slide to just a gratitude for all our masters, mentors, participants, and all our team members.
मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। दूसरी, आई थिंक, हेलो। Just tap on the screen, यस यस। right side. Yeah. Right side, Mansi? I don't know. Yeah. I Uh, cannot just enter the next slide. हाँ, okay, okay, okay. तो आज हम पहले एक केस के बारे में बात करेंगे और फिर हम सीखेंगे वो रेमेडी के बारे में। तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी आपको और आपके व्यूज भी लूंगी उसके बाद में। तो जब मैं क्लिनिक में थी, ये हमारी 4 साल पहले की बात है। जब मैं इनिशियली पूना आई थी, अबू धाबी से दुबई से शिफ्ट हुई थी, तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी। एक लेडी पेशेंट थी, तो 47 ईयर की थी। नाउ शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग विथ मी। अभी तक वो मेरे साथ है। तो वो मेरे पास आई थी कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे कंटिन्यूअसली नाक में से पानी आ रहा है, स्नीजिंग हो रही है, आंखों में जलन है, और जब मैं ब्रेथलेस हो रहा है। मतलब जब वो मेरे पास आई थी क्लिनिक पे, तो ऐसे हाफ रही थी, हाँ, ऐसे कर रही थी वो, और अपने कंप्लेन्स के बारे में कंटिन्यूअसली बात कर रही थी। उसने फिर बताया कि मुझे पीछे बैक में भी बहुत दर्द होता है। पूरे घर का काम वो ही करती थी। तो बोल रही थी मुझे हाथ पैरों में दर्द होता है, बैक में पेन होता है, मेरे ऊपर पूरा लोड है, पूरे घर का काम मैं ही कर रही हूँ। घुटनों में भी दर्द था उसको, और उसको बिल्कुल ठंड बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब अभी मेरे वहां पर जब वो आई क्लिनिक में, तो सबसे पहले उसने मुझे बोला, डॉक्टर साहब पंखा बंद कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम पंखा बंद कर देते हैं। और उसको थायराइड की तकलीफ थी। शी वॉज लिटिल ओबीस, मतलब थोड़ा सा ओबीस नहीं बोल सकते, थोड़ा अच्छा थी। और वो मेडिकेशन पे ले रही थी, 75 मिलीग्राम डेली उसका डोज था। पहले 100 मिलीग्राम ले रही थी, बाद में उसने 75 किया था। हम अभी उसके बात करते, जब मैंने उससे बात की, तो सब कुछ उससे पूछा हमने। तो उसका जो फैमिली था वो छोटी फैमिली थी, बेटा और उसका हस्बैंड। और उसका जो हस्बैंड है वो मेरा मतलब अच्छा फ्रेंड था। और वो एक कलीग भी था, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, जो जहां पर हम ब्लाइंड बच्चों को एडुकेट करते हैं। तो वो एनजीओ में मेरे साथ वो काम करते थे। तो वो उनकी वाइफ को मेरे पास लेके आए थे क्लिनिक पे। तो जब पेशेंट, उसकी कंप्लेंट्स उसने बताना शुरू कर दिया कि ये उसको पता नहीं कब शुरू हो गया, 5 साल पहले की बात है। उसको ये सब कंप्लेंट्स शुरू हो गए। फिर वो ईएनटी सर्जन के पास गई, एंड देन द ईएनटी सर्जन टोल के नहीं नहीं, आपको तो डिविएटेड नेजल सेप्टम है, आपको तो सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो फिर उसको उसको ऐसे लगा कि नहीं नहीं, सर्जरी नहीं कराना चाहिए मुझे, आई शुड कंसल्ट सम अदर डॉक्टर। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गई, तभी वो मेरे पास नहीं आई थी। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसको ऐसे लगा कि नहीं, अभी मुझे सर्जरी तो नहीं कराना है, उसको डर लगता था, उसको नहीं करना था सर्जरी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग इन टू द ऑपरेशन प्रोसीजर एंड ऑल दैट। फिर उसने दूसरे डॉक्टर के पास गई वो। तो वो डॉक्टर ने बोला ठीक है, मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ, आप वो रोज आपको खाना ही है, विदाउट फेल, उससे आपको ठीक लगेगा। तो वो शी वॉज टेकिंग दैट मेडिसिन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। पर फिर भी वो परेशान हो गई कि डॉक्टर साहब कितनी दवाई खाओ, थायराइड की खाओ, वही इसकी पेन किलर खाओ, इसकी एलर्जी की खाओ, तो मुझे नहीं खाना है। देन शी केम टू मी। और एक बात था उसमें, और एक बात थी कि कंटिन्यूअसली उसकी कंप्लेन्स के बारे में बात कर रही थी, कंटिन्यूअसली ना, मतलब उसको ये था कि बस अभी ये इसको कैसे मैं ठीक कर दूं, डॉक्टर साहब मुझे प्लीज ठीक कर दो, प्लीज, अभी बहुत हो गया है, मैं बहुत डॉक्टर्स के पास गई हूँ, अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, दिस इज, मुझे कुछ तो भी सोल्यूशन दो। दिस इज व्हाट शी एग्जैक्टली, जैसे उसने बताया मुझे उसकी हिस्ट्री। फिर वो मुझे बता रही थी कि डॉक्टर साहब, हो सकता है कि मुझे इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से, ये खाने की वजह से हो गया है, ये जहां पर मैं रहती हूँ वहाँ ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से हो गया है, आप कुछ कॉजेज मतलब बता सकते हैं कि क्यों मुझे ऐसे हो रहा है। तो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक्सप्लेनिंग टू यू द पेशेंट्स माइंड एंड द पेशेंट्स हिस्ट्री। ठीक है।
और उसने बताया कि मुझे आप ठीक कर दो, एंड क्योंकि मुझे सब कुछ काम घर पे अकेले करना होता है, मैं अकेली हूँ घर पे। तो ये उसका कंसर्न था कि मुझे सब कुछ करना है, मुझे अब झाड़ू भी करना है, बर्तन भी धोना है, पूरे घर का काम करना है, मेरे ऊपर सब अकेले मैं ये सब करती हूँ, तो मुझे जल्दी ठीक होना है। अब उसका माइंड, जैसे, ये बहुत अच्छा केस है, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था ये केस में, जब मैं केस टेकिंग कर रही थी। फिर जब उसने बताया कि जब मेरा बेटा बाहर जाता है, तो मुझे बहुत फिक्र होती है, मुझे ऐसे लगता है कि उनका अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, वो लौटेंगे कि नहीं घर पे, वो आएंगे कि नहीं। और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो जब उसके हस्बैंड घर से बाहर जाते हैं, उसका बेटा कॉलेज जाता है, तो उसको ऐसे लगता है कि नहीं, वो उनको तुरंत वो कॉल करती है और बोलती है कि नहीं, आप कितने बजे आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो ये सब पेशेंट ने मुझे बताया। और एक बात, टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, मतलब उसको एक एटीएम से पैसा निकालने को भी नहीं आता है। इतनी एडुकेटेड है वो लेडी, शी इज आई थिंक बीए है, पर उसको एक एटीएम में जाके पैसा निकालने को नहीं होता है, या मार्केट में अकेले जाना नहीं होता है, उसको उसके हस्बैंड के साथ ही जाना है हर जगह पर। हाउस वर्क वो मैनेज करती है, पर बाहर निकलना मतलब उसके लिए नामुमकिन है। उसको उसका हस्बैंड साथ में चाहिए, या तो बेटा चाहिए, ऐसी बात है। घर पे वो सब कुछ काम करती है, हस्बैंड का वेट भी करती है, उसको चाहिए कि उसका हस्बैंड उसके पास आना चाहिए। पर जब उसका हस्बैंड आता है उसके पास, तो कंटिन्यूअसली नैगिंग शुरू हो जाता है कि आज आप तो थे नहीं, ये ऐसे हो गया घर पे, देखो ऐसे हो गया आज। तो शी कीप्स ऑन कॉन्स्टेंटली नैगिंग, और फिर कभी कभी तो वो लड़ना शुरू कर देती है। तो ये जो सिम्टम था, इसने लेडी ने नहीं बताया मुझे, ये उसके हस्बैंड ने बाद में मुझे बताया। कि हम घर पे पहुंचते हैं, वो बातें करने के बजाय हमके, लाइक यू नो, शी जस्ट कीप्स ऑन कॉन्स्टेंटली क्वारलिंग उसके साथ, उसके बेटे के साथ। उसका बेटा थोड़ा फ्रेंड्स में गया, थोड़ा लेट आया, तो बोलते क्यों गया आज तू, तू तेरे को बताना नहीं चाहिए, तूने बिना बताए क्यों गया तू। तो शी वांट्स हर वे। उसके अगर उससे कुछ भी खिलाफ किया, तो देन शी स्टार्ट्स क्वारलिंग, नैगिंग, उसका ये है, बहुत गुस्सा हो जाती है फिर वो। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसने वो बताया कि हो सकता है डॉक्टर साहब, मुझे ये कंप्लेन इसकी वजह से हो गई, क्योंकि हो सकता है ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इसीलिए मुझे ये हुआ है। तो दिस इज द वे शी वॉज जस्ट टॉकिंग, मतलब नॉट करेक्टली। फिर उसके हस्बैंड के सामने देख के फिर वो बोलती, उसके हस्बैंड का अप्रूवल लेती थी। जब भी वो मेरे से बात करती थी, ऐसे देखती थी हस्बैंड के सामने, ऐसे ऐसे करके देखती थी। ओके। टाइम लगता था उसको, अगर कुछ पूछा तो थोड़ा टाइम लेके फिर वो आंसर करती थी, हस्बैंड के सामने देख के फिर वो बात करती थी मेरे से। ठीक है। और एक बात उसने क्या बताई, कि मुझे बाहर जाना, सबके साथ मिलना अच्छा नहीं लगता है, मुझे सिर्फ मेरी फैमिली में रहना अच्छा लगता है। मतलब मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, उसकी दुनिया वो ही है, दैट्स इट, बस। ओके, नाउ आई लीव दिस फॉर द डॉक्टर्स टू हैव अ प्लेटफॉर्म, जहां पर हम ये केस डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, और आप मुझे बताइए कि व्हाट यू कैन एनालाइज अबाउट दिस। आपको समझ में आया ये केस? आई थिंक कोई भी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आई होप आपको केस समझ में आया। Dr. Liaquat sir has also joined us, so I'm so happy. Anybody who wants to say something about the case? प्लीज ओपन अप, प्लीज आप बात कीजिए। एटलीस्ट हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। हम एनालिसिस
एनालिसिस, अभी मैं एनालिसिस का नहीं शेयर करूंगी, रेपर्टराइजेशन का नहीं शेयर करूंगी कुछ भी। एनीबडी? मानसी? यस मैम। यस, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट द केस एज सच? हेलो। समझा उनको? हेलो हेलो। मैम। यस। हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, ये रो 4 और कॉलम फर्स्ट की रेमेडी लगती है, कैलकेरिया लाइन की रेमेडी लगती है। ओके, इश्यूज ऑफ गुड, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको लगता है कि ये कलकेरिया है, ठीक है। ओके, और कोई? और किसी को कुछ बताना है? जैसे उन्होंने बोला कलकेरिया है, ठीक है, वी विल लुक एट दैट ऑल्सो, एंड ही इज पार्शियली राइट। हेलो। बोलो कोई, जिसको भी समझ में आया कुछ। समझ में आया? ये केस समझ में आया आपको? अगर नहीं आया तो बोलो, मैम ब्रीफ कर देंगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगी आपको। सीपिया, ओके, ओके, गुड, वेरी गुड। क्यों सीपिया? आप कुछ बता सकते हैं, वाई सीपिया? हाँ डॉक्टर संध्या, सादिया? आप टाइप करके बता सकते हैं कि क्यों सीपिया। कुछ एनालिसिस कुछ तो भी किया होगा, आपको ऐसे लगा होगा कि क्यों ये सीपिया है। और कोई? कुछ तो भी बात कीजिए, कुछ तो भी, एनी सिम्टम जो आपको अप्रोप्रिएट लगा ये केस में, कोई भी सिम्टम। लेजीनेस टू हर डेली हाउस होल्ड वर्क? नहीं, उसका लेजीनेस नहीं है, उसको सब कुछ करना है। शी वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग। यस, लेजीनेस हो सकती, फिर बाद में वो थक जाती है। उसको सब कुछ करना है घर पे। उसको एक्चुअली उसके घर पे भाई नहीं है, तो उसको बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है उसको। एंड शी इज मैनेजिंग अलोन हाउस होल्ड वर्क, वो मैनेज कर लेती है। पर उसको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है घर पे। वो जब अकेली रहती है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए शायद वो अपने काम के अंदर, लाइक दिस वाई शी इज इन्वॉल्विंग हरसेल्फ इन वर्क, मे बी। किसने बोला था मुझे कलकेरिया? 1+CPH? लेजीनेस है मतलब वो थायराइड का भी सिम्टम हो सकता है ना, उनको थायराइड थायराइड का, एग्जैक्टली है, थायराइड का सिम्टम है, क्योंकि डिसीज का सिम्टम हो हाइपोथायराइड है वो। सकता है। या हाँ, थक जाती है जल्दी, वीकनेस है। एंड दैट विल बी कॉमन सिम्टम आई थिंक। यस, दैट्स अ कॉमन सिम्टम, करेक्ट। बहुत डिफिकल्ट लगा केस? आई थिंक एक बारी आप ब्रीफ कर दीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, मैम। यस सीमा। मैम आर्सनिक आर्सनिक हो सकती है मैम। आर्सेनिक? अच्छा, क्यों आर्सेनिक लगा आपको सीमा? मैम वो आर्सनिक में भी वो आ, ये अकेले रहना नहीं चाहता है पेशेंट, और उसको ठंड बहुत लगती है, हाँ हाँ। उसको हीट चाहिए, हम्म। और रेस्टलेसनेस जैसी फीलिंग है उसमें। हम्म। मैम यही सब लेकर ऐसे पर वो लग रहा है। रेस्टलेस नहीं है, वो रेस्टलेस बिल्कुल नहीं है। वो अपना काम आराम से करती है। ओके, ओके मैम, फिर और सोचते हैं मैम। हाँ, सोचिए सोचिए, कोई बात नहीं, सोचिए। और कोई बता सकता है? 1+ जो है ना, उन्होंने बोला था कलकेरिया, पर उन्होंने क्यों कलकेरिया, वो आप बता सकते हो?
मैम इश्यूज ऑफ प्रोटेक्शन सिक्योरिटी का इशू है ओके, और वेरी गुड। कॉन्फिडेंस नहीं है, हम्म। ऑलवेज सपोर्ट चाहिए उसको, करेक्ट। टिमिडिटी मार्क्ड लगती है। हम्म। तो तो आप पार्शियली करेक्ट हो। ओके, तो पार्शियली इन द सेंस आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड पार्शियली, तो पार्शियली प्लीज मतलब वन पार्ट इज करेक्ट, व्हाट अबाउट अदर पार्ट विच इज other part, that is what you have to think about. ओके There are so many facets of this remedy, so ओके you have ओके, to think about that. थैंक यू। Anybody else? Please brief case again once. Okay, okay, ठीक है। तो ये जो केस है, ये एक लेडी का केस है, 47-year-old लेडी। वो उसके सबसे पहले जब वो क्लिनिक पे आई, व्हेन शी केम टू द क्लिनिक, शी टोल्ड मी के आई एम फीलिंग हैविंग लॉट ऑफ स्नीजिंग, लॉट ऑफ वाटरिंग, यस, lot of watering from the nose, allergic symptoms. Basically, it was some allergy, what she was telling me, and burning in the eyes, and फिर घुटनों में पेन इन द नीज, घुटनों में दर्द था, बैक पेन था उसको, और ये लाइक ब्रेथलेस। जब वो आई थी तो शी वॉज लिटिल बिट ब्रेथलेस, ठीक है। और उसने बोला कि मुझे ठंड लग रही है, आप पंखा बंद कर दीजिए। तो मैंने पंखा बंद कर दिया था तभी। एंड देन शी हैड कम विथ हर हस्बैंड, अकेले नहीं आई थी, हस्बैंड के साथ आई थी वो। उसको अकेले किधर भी बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। शी नीड्स आइदर हस्बैंड और शी नीड्स आइदर सन, और दोनों साथ में लगते हैं उसको। कभी भी कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि वो अकेले ट्रैवल कर सके, ठीक है। ये सबसे पहले जब वो 4 साल पहले मेरे पास आई थी, ये तब की बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया वो केस का, कि जैसे उसको, वो घर पे जब रहती है वो सब काम कर लेती है, घर का काम। बाहर का काम जैसे होता है, जैसे बाजार लाना है, जैसे कुछ लाना है, दूध लाना है, जैसे पैसे निकालने एटीएम से, तभी उसको हस्बैंड चाहिए साथ में। मेनिया डोमेस्टिक कैलामिटी आफ्टर, ओके, 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 ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द शॉर्ट द जिस्ट ऑफ द रेमेडी। उसके बाद वो जब घर पे जब आते हैं उसके हस्बैंड, और उसको वो डर लगा रहता है, मतलब हमेशा उसको वो है, क्या बोलते हैं, फिक्र रहती है कि हस्बैंड जब बाहर जाते हैं तो उसको फिक्र रहती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वो घर पे कितने बजे आएंगे, कब आएंगे। जब बहुत बारिश होती है तो उनको ऐसे लगता है कि घर पहुंचेगी कि नहीं, ये एक है। उसके बाद में उसने अभी तक अपना, उसका बेटा है 20 साल का, उसको अभी तक बाइक हाथ में दिया नहीं है। उसको उसको बोलती है बस में जा तू, और या तो तेरे पापा तेरे को छोड़ने आएंगे। तो शी इज सो मच लाइक उसका पता नहीं क्या है, उसको घबराहट होती है, कुछ तो भी होती है, कि वो अलाउ नहीं करती है अपने बेटे को बाइक चलाने। और यहाँ पर पिताजी बोलते हैं कि आप बाइक सीखो, बाइक चलाओ। माँ बोलती है कि मत सीखो, कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो और जब घर पे आते हैं तो वो अपना पूरा जो गुस्सा है पूरा निकालती है, और फिर उसको पछतावा भी होता है। मतलब उसके बाद में वो खुद खुद से ही पूछती है कि क्यों मैं इतना लड़ रही हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस विद देम, क्यों ऐसे होता है। वो खुद खुद से ही करती है, खुद खुद ही आर्ग्यूमेंट्स करने लगती है। तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द केस। कैलकेरिया फॉस, क्यों कैलकेरिया फॉस, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं डॉक्टर देसाई? कैलकेरिया एलिमेंट है, डेफिनेटली कैलकेरिया एलिमेंट है। जी, कोई बता सकता है डॉक्टर देसाई? आप बता सकते हैं क्यों कैलकेरिया फॉस? कुछ एनालिसिस कुछ किया होगा? कि शुड आई स्टार्ट विद द एनालिसिस? व्हाट डू यू से? आई नीड योर आंसर्स। Somebody said lachesis. यस, somebody said lachesis, yes. क्यों lachesis? Anybody can tell me why lachesis? So many remedies have come so far. Sepia has come, Calcarea fos has come, Calcarea has come, lachesis has come. और शुड आई रिवील? बहुत जल्दी होगा ना ये तो।
फिर हम अनकॉमन सिम्टम्स वो रेमेडी के पढ़ेंगे थोड़े से, एंड देन आई विल डेफिनेटली आई विल नीड डॉक्टर लियाकत नामोले सर्स expertise. Chili patient, may we think of Hibar Sulf? Okay, good, good. Only for chili patient you will think of Hibar Sulf. चिली पेशेंट तो चिली रेमेडीज तो बहुत सारी है वैसे तो, एग्रेवेशन बाय कोल्ड बहुत सारी रेमेडीज है। कुछ तो भी एनालिसिस किया होगा आप लोगों ने। और कोई किसी को बताना है कि वी शुड मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. वी शुड मूव फॉरवर्ड। शुड आई शेयर द स्क्रीन? Yes. एनालिसिस, एक बार एनालिसिस पढ़ लो, उसके बाद अगर होता है टिमिडिटी अलोन व्हेन, ओके ओके गुड। फिर हम पहले एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, और रेमेडी बाद में हम देखेंगे कि कौन सी रेमेडी आती है, और फिर हम बात करेंगे, ठीक है। कैलकेरिया सिलिकेटा ऑल्सो थिंक, यस गुड। So many we have got that group of remedies. Okay, तो ये स्क्रीन, is my screen visible? Yes, ma'am. Is my screen visible? Yes, yes, ma'am. ओके, सो ये माइंड, आप लोगों ने माइंड का ये देखा, एनालिसिस नहीं बट माइंड पढ़ा आपने उस वो लेडी का? शी इज वेरी एंशियस व्हेन द हस्बैंड एंड सन गो आउट ऑफ द हाउस, कीप्स ऑन वरिंग, शी लाइक्स व्हेन दे आर विथ हर। ये सब पढ़ा आपने, एक सिम्टम? और एक बात है, उसको सोशलाइजिंग अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर द सन एंड द हस्बैंड, नो अदर फ्रेंड शी हैज गॉट, एंड वन ऑफ द फ्रेंड इज मी, दैट्स इट, शी कंसिडर्स मी एज वन ऑफ हर फ्रेंड्स, दैट्स इट। ओके ओके, नाउ दिस इज द एनालिसिस। अच्छा, ये एनालिसिस के ऊपर आके एनीबडी कैन टेल मी द रेमेडी? कोई बता सकता है रेमेडी? कौन सी रेमेडी हो सकती है? Any doctors, please, you can just unmute yourself and just read the analysis and just tell me about the remedy. Or you Somebody can has. refer to the repertory. Should I stop sharing the screen? You all have got this analysis? Doctors, Yes, ma'am. should I stop sharing this screen? Chat में क्या लिखा है? Laziness. Yes, yes, all the chats I've read. Somebody has. Dr. Pragati, anxiety about children, anxiety about family members, cold aggravates, fear of accidents, fear of injuries, dependent on others, arsenic. Okay. Smita has written Kalikap. Why Kalikap, Smita? Can you please let me know this? Latina, okay. Kalikap, Dr. Pragati has given Kalikap. Platina is also there. Mind fear, happens something will, husband will not return home. Okay. Please, can you share your analysis, the ones who have put down in the chat? If you all can speak, or if you all can just type in the chat. Because you all are very close to the remedy, and definitely I will reveal the remedy. Should I? At least answer. Natramure. Natramure. Okay. Yeah. Who? 1 minute. I'll just stop sharing the screen. Who said Natramure?
Me, ma'am, Seema Gupta. Okay. Natramur, I'm saying. Okay, Natramur. Yes, ma'am. Why Natramur? Can you tell me? Why Natramur? She's anxiety future about Hmm. and But anxiety, there are a lot of medicines anxiety future about. Correct. ma'am, she can't company aversion, ma'am. Company averse? No, she likes company of only husband and son. Okay. Okay. I'm getting good answers. I'm getting in the chats also. I'm getting very good response. देखते हैं मैम फिर. Excellent. Very good. Very good. All of you all are very close to the remedy. And I think few, the ones in the chat, have got the remedy also. Should I reveal the remedy? Should I share my screen of the repertorization, what I have taken, the symptoms? Yes, please. At least yes or no I need from you all. Yes. Doctors. Yes, yes, ma'am. yes. Yes, ma'am. Should I share the screen? Okay. And then I will tell from the, then I think the ones who have written in the chat, they will know they were right. Okay. You can see my screen? Yes, Can you ma'am. all see the screen? Yes. Yes, madam. So this is the analysis what I have got, and I think Smita has given the right remedy, Kalikap, and I think one more doctor had mentioned Kalikap. Excellent, excellent. So Smita, can you speak a little bit? Not, I think Smita, right? Dr. Smita? Yes, ma'am. Can you share why you came to that conclusion, Dr. Smita? Ma'am, consider Kali is a very family-oriented person, Correct. and the patient is always anxious about her family. She is very dictatorial, fast here. She wants the things happen in her own way. So I come to the remedy Kalika. Very good, Smita. Excellent. So this is the symptoms like what Smita spoke just now. I was thinking about those. I considered those symptoms. I repertorized and then I got Kalika. So Kalika 30 was started with her. The symptoms which if you want me to explain, because there are two symptoms which are very specific to Kalika. So one is dictatorial dogmatic. She wanted her way. She wanted to have her way in the house. लाइक अगर ये करना है तो वो ही करना है, वो नहीं सुनती हस्बैंड और बेटे का कुछ भी, तो वो अपना ही सुनती है, अपना ही करती है, डॉगमेटिक, मतलब उसको ऐसा है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है, लाइक दिस. सो दिस इज वन सिम्टम विच आई कंसिडर्ड. वन थिंग इज थियोराइजिंग अबाउट हर हेल्थ. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू के she was constantly telling me कि हो सकता है कि ये ऐसा होगा, ऐसा है, इसीलिए मुझे ये सब हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि ये हो सकती, वो थियोरीज, अपनी ही थियोरीज दे रही थी. सो दिस वाज वन सिम्टम विच आई कंसिडर्ड द फर्स्ट सिम्टम, थियोराइजिंग अबाउट हर हेल्थ and future about anxiety about her disease. Because when she came to me, she just told me कि डॉक्टर साहब ये ठीक होगा कि नहीं, प्लीज कुछ तो भी करो, क्या होने वाला है मुझे कुछ पता नहीं है. So this is where she was too much anxious. And you know that Kalika, you know all the Kalis, you know all these Kalis are, it has a lot of anxieties, correct? So this is the analysis, doctors. So anybody wants to say anything, and then I will Dr. Liaquat, over to you for more of your thoughts on this remedy and more about it. Yes, doctor. Shrieking help for Dr. Desai, okay? No, the symptoms which were taken are all like, similar, correct? Dr. Liaquat?
And one more thing I want to share with all of you. We started with Kalikap 30. I started with Kalikap 30. I didn't repeat, just I gave her 3 doses. Okay. And after that, I didn't repeat for a month. She was absolutely, the complaints reduced. And then she came to me after a month. I didn't repeat any medicines. I just gave her SL. And for 2-3 months, I didn't repeat any medicine. And slowly, in 4 years of time, I moved to Kalikap 1M. The only result, there were positive results. Now she comes to me alone without her husband. This is one good thing which I noticed. And then she goes out to buy the market things, whatever bazaar or whatever she needs, she goes alone and she buys that. This is one Yeah. change which we saw in her. And So she husband must be very happy. Thank you. husband is so happy. You can take Thank you from all the husbands community. No, really, the husband is so happy, relax little bit कि अभी तो उसके साथ जाना नहीं पड़ता है बार-बार. देखो जी. And I need your inputs and expert opinion Dr. from Desai is saying, what about Ma'am. her DNS and hypothyroidism? Dr. Ma'am, Kali. 1M was given, ma'am. not 1M. First 30 was given. After 4 years, I moved to 1M. Dr. Desai is asking, what about her DNS and hypothyroidism? Hypothyroidism. Okay, now regarding her hypothyroidism, first she was taking 100 milligram. Okay, now she has reduced to 25 milligram. That also she takes only twice a week. That is a placebo, that you can stop. Finish. That you can stop. That also okay, one more thing is she was hypertensive. She used to take hypertensive medicines in a day twice she used to take. She has totally stopped hypertensive medicines. Yeah, very good, Masha. And I gave her 1M, no repetition. It is 3 months now. Just take her TSH, Arwa. If it is normal, you can stop the 25 months. Yes, what you are saying? Check her TSH, T3, T4, TSH. If it is normal, you can stop. I can stop that thyroid. Yeah. Okay. Yeah, Okay. please. You can repeat 1M. Okay. Okay. Fine. Now maybe when she comes to me, I will tell her to check her thyroid levels. Yeah. No, call her and tell her, come with the reports. Call her and tell, come with the reports. No need to give artificial. And regarding the DNS, Dr. Desai, the DNS, there is no need of the deviated nasal septum is there, but there is no need of surgery. Because she is improving, she's improved. She stopped that medicine, Hetragen or something she used to take daily, she used to take for that sneezing and all. She's totally stopped. क्या बात है बढ़िया अरवा जी बहुत बढ़िया Thank you. Any And I questions? need your expertise now. Expertise, Tawba. I'll tell about my experiences, not expertise. Your experiences with Kalika, definitely. Guys, Dr. Arwa is my classmate. We were together. Okay. So, ऐसा कुछ नहीं है वो जानती है मेरी असलियत को जानती है मेरी सारी असलियत को अरवा जानती है सब कुछ मैडम मनीषा मैडम आर माय क्लासमेट हमारा तो ग्रुप ही था ना you me Manisha very close friends. Okay. So yes. Okay, about the husband I want to talk. yes Okay. yes. Because I always enjoy talking about, I enjoy as in that's my point of concern always, the IPR thing. You know? Why was she irritable? There is one more rubric, guys, you all missed. You know? Can I share my screen? There is one more rubric you all missed actually. Very simple rubric you all missed, you know. कोई बता सकता है what rubric you have missed? What rubric you missed? Hello, anybody? What rubric you all missed actually? Very simple rubric, you know. Fear of injury. देखो nagging. ऐसा रुब्रिक है पढ़ते नहीं हो आप लोग रेपर्टरी देखो nagging में डायरेक्ट कालिका में देखो what is the difference between nagging and sulky देखो sulky means to silently withdraw as if in protest and nagging means to annoy or complain in the sense of tormenting कालिका मतलब मराठीत आम्ही बोलतो खाष्ट सासू वैताग देने वाली सास
She will constantly keep nagging. Kalika, Naxomikas are also getting platina. Oh my God, they give very hard time. I have one platina. Baba. तो कालिका लाइकोज या लाइको तो बाप भी रहता है nagging वाला, the typical important father, who's unhappy with his mother, I mean unhappy with his wife, and he will keep on, raping the ears of the family members, or even the bosses. They're the worst bosses. Lycopodeans are the worst bosses. वो है ना, heart for superior, heart for inferior, soft for superior. They're the worst bosses. Constantly they will keep nagging. They will see to it that they break the confidence of their subordinates. They are not good bosses. Lycopodians are not good bosses. Okay. बाकी है नैट्रम काब है, लाइक ऑरम है, आर्सेनिक है, ये लोग अच्छे बॉसेस हैं क्योंकि इनके अंदर केयर्स ये होता है ना, दे हैव दैट केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, तो वो सबको लेकर चलते हैं। काली केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स एंड केयरफुल ऑफ अदर्स वाले जो होते हैं ना, वो सबको लेकर ऊपर चलते हैं। ये लोग का क्या होता है, इनको अपने पोजीशन कर खलास नहीं करने की रहती। तो लाइकोपोडियन नक्स तो फॉर परफेक्शन इज गोइंग टू नैग नैग नैग। नक्स तो उसमें भी है ना, बार्किंग में है ना, एक रुब्रिक है बार्किंग, अगर आप देखोगे ना तो उसमें नक्सबंदी का है। ओके, बार्किंग विथ एंगर ऐसा कोई तो रुब्रिक है, तो उसमें नक्स है। ओके, तो नैगिंग का ये अरवा मैडम ने बोलते बोलते बोला था कि घर पे आते तो हमको डर लगता है, ये किरकिर किरकिर करेंगी, शी विल कीप नैगिंग, दैट्स व्हाट शी सेड, मोस्ट ऑफ द टाइम शी यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स। तो एक जस्ट एक मैं आपको बताता हूँ, आप डाल के देखा करो जस्ट एक तो आपका आइडिया आता है। वन मोर थिंग अबाउट हस्बैंड दैट आई हैड प्रॉमिस्ड अरवा टू स्पीक अबाउट is, if you see husband, देखो, aversion to husband, aversion to family members, and nagging. And what is it? Quarreling with the children, na? You said, Arma? Quarreling with her own family, that members, and with herself also. Yes. She's quarreling with herself. Quarreling with, है ना? Quarrelsome family with her. देखो, इसमें भी अगर आपको कालिका मिलेगा, तो इसका हमेशा घर में चलता रहेगा। ठीक है, इनकी बहू है, दे हैव टफ टाइम। ओके, इनकी बहू का टफ टाइम होता है। कालीफॉस का क्या होता है ना, कालीफॉस को सपोर्ट नहीं मिलता, इसके लिए कालीफॉस झगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये मेन चीज समझो। अरे कालीफॉस दोनों में एवर्जन टू हस्बैंड देखो तो बोथ हैव एवर्जन टू हस्बैंड, बट वन थिंग इज देयर, दे लॉयल। देखो, कालीफॉस बिकॉज ऑफ द फॉस्फरस एलिमेंट माइट गेट adulterous, might think about somebody else. Somebody said natrum mur also to me, One which of is my what was patient very had close. actually, one of my Califas patient who had issues with her husband, she wanted to date me, but that time I was very, very loyal to my wife. I said no, no, no. So she was beautiful a long time. I mean, 20 years back. Not now. अभी तो नहीं, अभी तो सब बच्चे आते हैं। तो one thing is that they are loyal to their families. Remember. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, कालिका क्यों कॉरलसम होता है फैमिली के साथ में, कालिका क्यों नैगिंग होता है, कि कालिका ये बोलता है कि ब्लडी आई एम सो लॉयल, मैं इससे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी आपको मिलेगा। देखो, तो क्या होता है ना, बोलते ब्लडी आई एम सो लॉयल, आई एम सो रिस्पॉन्सिबल, आई एम डे इन डे आउट, आई एम वर्किंग फॉर द फैमिली, ऑल दिस इयर्स आई हैव गिवन टू माय फैमिली। हस्बैंड उसको पसंद नहीं है, फिर भी हस्बैंड के साथ में रह रही है, बच्चों के लिए रह रही है ना, और हस्बैंड इरिस्पॉन्सिबल रहता है। काली काप का मैं देखा ज्यादातर हस्बैंड इज इरिस्पॉन्सिबल। ओके, आई हैव सीन दिस इन मोस्ट ऑफ द काली काप्स, दैट इज व्हाई दे डेवलप दैट aversion to husband, that is why they are like and other members are also, because इनके स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ज्यादा मतलब इनके अपने हिसाब से होते हैं। क्या नहीं, कन्फर्मिस्ट है ना, माई वे और हाईवे वाले होते हैं ना, कन्फर्मिज्म है। तो काली काप इज लाइक माई वे और हाईवे। ठीक है, तो कालिका आपको अपने तरीके से चाहिए। फॉस्फरस का क्या होता है कि सही काम होता रहे। नक्सवामी का आपको परफेक्शन चाहिए बस। नक्सवामी का ये नहीं होता कि मेरे तरीके से करो। अब आर्सेनिक कम्स डीडी टू दिस। लाइकोपोडियम का क्या पंगा है ना, लाइकोपोडियम एग्जैक्टिंग टू में है। देखो, आई एम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लाइकोपोडियम एंड कालिका। ओके, द नैगिंग ऑफ लाइकोपोडियम एंड कालिका। ठीक है, तो लाइको इज एग्जैक्टिंग टू, मतलब क्या है ना, मैंने बोला वैसा करो। तुम्हारा लाइकोपोडियम क्या बोलता है कि सबको, कि अपना दिमाग घर पे रख के आने का, मैं बोला वैसा करने का, सीधा सीधा।
ऐसे इस तरीके से मैं सुना हूँ बहुत, मतलब सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं, वाइफ्स बोलती है कि ये जैसा बोलेंगे ना, उनने बोल दिया है कि मैंने आपको बताया हो ना, बस वैसा चलो। आर्सेनिक तो गाली देंगे मतलब एमसीबीसी करके बोलेंगे बोला है ना मैंने, उस तरीके से करो। मैं बोला हूं ना कि इधर रखा है तो उधर ही मिलेगा। तो दैट इज द थिंग, एग्जैक्टिंग की वजह से प्रॉब्लम आता है। और काली काप का क्या होता है ना कि काली काप का कन्फर्मिज्म है, उसके सेट रूल्स है, क्योंकि वो डॉगमेटिक में भी है। काली काप इज इन डॉगमेटिक ऑल्सो, तो उसके डॉगमाज है, उसके फिक्स डॉगमाज है, जिसको हम लोग कॉलेज के अंदर फिक्स थॉट्स बोल के पढ़ते थे, इसके लिए हम तुझा तुझा बोलते थे कि फिक्स थॉट्स है, फिक्स थॉट्स है। तो ये होता है डॉगमा, मतलब उसका फिक्स है कि कोई कोई चीज इस तरीके से हुई होती है, समझा। तो उसके वजह से काली काप का वो रहता है। तो काली काप, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन काली काप का लाइकोपोडियम के साथ में होता है अपना, इसलिए क्योंकि लाइकोपोडियम इज ट्रेडिशनल, प्रेजुडाइज, exacting to and nagging and dictatorial and censorious and fault finding. ओके सिर्फ आपको यहाँ पर प्रेजुडाइज, ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज और डॉगमेटिक के अंदर का समझना है। जो फिक्स एक सोसाइटी के डॉगमाज है उस तरीके से चलने वाला होता है काली काप, लाइकोपोडियम ट्रेडिशन को लेकर चलने वाला। ये फर्क आप समझ लो। और लाइकोपोडियम का अपना खुद का भी एक ट्रेडिशन होता है, क्योंकि वो इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है लाइको में। आप देखो जितने भी आपको टॉप लीडर्स मिलेंगे, आपको ज्यादातर वो मिलेंगे उसके अंदर। और लाइकोपोडियम के अंदर सल्फर भी है। अगर लाइकोपोडियम का हमने अगर केमिकल फॉर्मूला देखा, तो लाइकोपोडियम कंटेन्स सल्फर ऑल्सो। तो लाइकोपोडियम के अंदर वो सल्फर का ईगो भी आता है, वो नॉलेज वाला भी आ जाता है। फिर लाइको के अंदर वो सब फिशिंग एप्टीट्यूड भी आ जाता है, मैनिपुलेशन भी आ जाता है, एफिमिनेसी भी आ जाती है ना। तो वो लाइकोपोडियम उसकी वजह से बहुत जिद्दी अपीयर करेगा आपको, ठीक है। काली का आपका पंगा होता है बिकॉज दे आर सो एंक्शियस, क्योंकि उनका ये होता है कि हेलमेट पहन के जाने का, गाड़ी लाइन से चढ़ाने का, सिग्नल नहीं तोड़ने का। कितने भी लोग हैं, आई एम नॉट गो टू ब्रेक द सिग्नल। और बच्चे आजकल के सिग्नल तोड़ देते हैं, इनको समझ में नहीं आता, ये कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चिल्लर दे देते हैं, ये पैसे भूल जाते हैं। ऐसा काली का हस्बैंड के बारे में बोलेगा। उसके अंदर एक रूब्रिक है ना, फियर हस्बैंड विल, क्या है वो, नॉट रिटर्न होम, ऐसा है ना। फियर हस्बैंड समथिंग इज गोइंग टू समथिंग हैपन विल, टू हस्बैंड, नहीं ये नहीं प्लैटिना इसमें में नहीं, है। प्लेटिना है। ये प्लैटिना में कालिका में एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, फियर अलोन, बीइंग अलोन, लेस्ट डाई ही विल। देखो दैट इज व्हाई दे वांट समबडी इन हाउस कॉन्स्टेंटली। ये जो है ना, कालिका इज वन ऑफ द टॉप रेमेडीज फॉर फियर्स along with arsenic. Many times I have seen doctors prescribing Kali Ars. No, you either prescribe arsenic or you give Kalika. There is no need to give Kali Ars. There is no need to give. मैंने देखा क्लासिकल वाले बहुत लोग, मतलब with due respect to their style of practicing, of course, but एंजाइटी बोला तो आर्सेनिक वाला ये जो है ना, अपने दिमाग में वो निकाल दो। एंजाइटी में तो फास्फोरस भी है, वैलेरियाना है, सबाडिला है, मैंसिनेला है, ये लोग कितने ज्यादा एंशियस होते हैं, है ना। तो ये खाली आप ध्यान रखो। ये आपको काली का आपका सेकंड एक में बता रहा हूँ, जिसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, ठीक है। उसको एम्बिशन लॉस बन जाता है ना। और ये देखो इसका एम्बिशन लॉस फॉर मनी भी है, और एंटेगोनिज्म विथ हिमसेल्फ में भी है। अगर आप देखोगे एंटेगोनिज्म विथ हिमसेल्फ में निकाल कर रखा, मतलब खुद का दुश्मन रहता है वो। अरवा मैडम ने सही बताया, तो खुद से भी झगड़ती है। देखो एंटेगोनिज्म विथ हिमसेल्फ, देखो मतलब ये खुद की दुश्मन खुद रहती है। ये खुद की दुश्मन, मतलब लोग बोलते हैं कि यार ये बहू से अगर ढंग से रह जाए ना, तो बहू इतनी अच्छी है, पर ये खुद ही की दुश्मन है, इसको खुद का फायदा नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये सेंटेंस आपको काली काप के बारे में सुनने को मिलेगा बहुत बार। काली काप के बारे में सुनने को मिलेगा, और सेपिया के बारे में बहुत बार ये आपको, ये सेंटेंस बहुत लोग बोलेंगे आपको, ये दो सेंटेंस। और लैक्कैन, लैक्कैन के अंदर भी उसको ऐसा लगता है कि अभी नई बहू आ गई, अभी तो उसके पास में आ गया, अभी देवरानी आ गई, अब देवरानी के पास पैसे वाली है, तो सब देवरानी के ही अभी आगे आगे करेंगे, अब मेरे जेठानी का नहीं रहा,
कालीफॉस का तो अगेन वही कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ की वजह से सपोर्ट डिजायर रहता है ना कालीफॉस को। काली का सेपिया का क्या होता है ना कि एम्बिशन लॉस फॉर फेम है। देखो आप, एम्बिशन लॉस ऑफ, क्या है वो, फॉर फेम। क्या रूब्रिक कहते हैं, एम्बिशन लॉस फॉर फेम, एम्बिशन लॉस फॉर फेम। देखो उसमें सेपिया है, तो सेपिया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़बड़ करती रहेगी, काम करती रहेगी, बड़बड़ करती रहेगी जिंदगी में। सेपिया झाड़ू पोछा लगाती रहेगी, उसके बच्चों के बच्चों का, उसके बच्चों, मतलब 3 पीढ़ियों तक बच्चों की वो बेबी सिटर का काम करेगी सेपिया, क्योंकि उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड भी है। कालिका ऑन द कॉन्ट्ररी इज नॉट वेरी मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड। देखो कालिका मां नहीं समझती अपने आप को, कालिका घर को, घर के सबसे बुजुर्ग समझती है अपने, ये तुम समझो। इसलिए कालिका आप सबको डांटते रहेगी। प्लीज रिमेंबर दिस, सिंपल। जैसे कैलकेरिया, कॉक्यूलस, सेपिया, बराइटा, आर्सेनिक, ये लोग मां समझते हैं अपने आप को मरते दम तक, जैसे लैक डिफ्लोरेटम, लैक मैटरनल। लेकिन कालिका जो है ना, अपने आप को घर की सबसे बुजुर्ग लड़का लड़की, या तो बुजुर्ग बुढ़ा समझेगा, या बुजुर्ग औरत समझेगी अपने आप, इसलिए वो सबको डांटेगी, सबको। मेरे एक दोस्त की माँ थी, मैं जब गया, मेरी गाड़ी का स्लिप हो गई थी थोड़ी सी, थोड़ा सा कॉलेज डेज में had थोड़ा सा चलता है ना, झगड़े वगड़े, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था मेरा, तो मेरी बाइक स्किड हो गई, आई वेंट टू हर। तो मैं गया, पैर पड़ा, मिला आंटी पैरी पुन्हा, काय रे नशेत गाड्या चालवता का, कस काय पडला? म्हटलं नाही नाही काकू असंच, काय कस काय पडला, मतलब और जबकि मैं उनके लिए फोन किया था उनने, कि वो सुमन ने फोन किया कि अरे लियाकत भाई आते आते तो मम्मी के लिए दही पूरी लेकर आओ। मतलब मैं उनके लिए दही पूरी लेके जा रहा हूँ, मेरे को डांट रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब इतना इतना। ओके, प्लीज रिमेम्बर, मतलब इतना वो डांटेंगे, उनको डांटना उनका सबसे पसंद का काम। मेरी फ्रेंड है, मेरी जूनियर है, मेरी 2 साल, मैंने जूम लिया था अपना, 40 मिनट्स का जूम है ना, तो हम लोगों ने पे कर लिया, कुछ 10-15 रुपए का ऑफर आया था, 12-13-14 हजार। डॉक्टर प्रियंका कॉल मी, बोली सर कुछ 15,000 में 1 साल का है, तो मेरा ले ले बेटा, कुछ नहीं, 1-1.5 हजार महीना, इज नथिंग। तो वो मेरे को बोलती कि क्यों लिया, कहीं को पैसे डाल रहा है, था ना 40-40 मिनट का अपन बार बार करते थे। तो इतना होता है उनका, उतना वो डाटम डुटम जिंदाबाद। ठीक है, आई थिंक देर दिस इज इज वन मोर सिम्टम, मनी मैटर्स। कालिका आपका है ये, मनी एंजाइटी, मैटर्स मनी का। मैटर्स है ना, यस। और एम्बिशन लॉस फॉर मनी में भी, लेकिन बाद में हम्म। क्या होता है ना, ये ट्रांक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट से हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या होता है ना, पहले बहुत फिक्र कर करके फिर बाद में ये लोग बोलते हैं यार जाने दो, क्या पैसा कमाने का, जो है वो होने वाला है, काय को अभी ये कौन सा, ये लोग इनको कौन सा पैसा मिलने वाला है, देखो। लेकिन अभी मनी मैटर्स में खाली फॉस आता है, वो खाली काव नहीं आता है। हम्म। इन द क्वेश्चन क्या होता है ना, खाली का भी शी कंजूस। इज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, कुछ तो भी एक एक ऐसा सिम्टम है। बट एम्बिशन लॉस फॉर, वही तो है ना, हाँ, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ये मेकिंग मनी, एम्बिशन उसको लॉस ऑफ टू मेक अपॉर्चुनिटीज मनी, है। एम्बिशन लॉस टू मेक मनी। मनी, करेक्ट। लेकिन ये बहुत ज्यादा चिंता कर करके ये स्टेट में आता है। नाइट्रोन का बिकॉज ऑफ बिनावलेंस रहता है, उसको कभी पैसे की पड़ी नहीं थी, अपना अपना डिग्निटी में रहता है। नाइट्रोन का आपका क्या है ना, कि वो एम्बिशन लॉस फॉर मेक मनी डिग्निफाइड है, देखो वो अपनी डिग्निटी में रहता है, वो अपनी डिग्निटी में, उसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं, उसका अपना अपना, उसका क्या है, नेचर लव है उसका, वो अपने नेचर में रहेगा। ये देखो, ये क्या किधर गया नाइट्रोन का, काय में नाइट्रोन का यार, Art ability. आर्ट एबिलिटी है, देयर इज वन मोर थिंग बेटा, आर्ट एबिलिटी है, देयर इज वन मोर थिंग, हार्मनी डिजायर में क्या नाइट्रोन का, अपने आर्ट में तो रहता है, वो आर्टिस्टिक है उसका तो एक्चुअली एबिलिटी है ना, तो वो अपने अपने आर्ट में लगा रहता है, क्योंकि ये आर्टिस्ट लोग है ना ये लोग, उसके अंदर आर्टिस्ट विथ इंडिफरेंस टू मेक मनी, एम्बिशन लॉस टू मेक मनी, प्लीज रिमेंबर दिस। ये क्यों होता है, क्योंकि पहले आपको एम्बिशन रह चुकी है,
एम्बिशन लॉस कब आता है? हेलो, व्हेन यू हैड एम्बिशन, अंडरस्टूड? तुमको पहले एम्बिशन होती है, वो चली जाती है, बट नॉट सो मच। हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक एम्बिशन टू मेक मनी, ये और फिर एम्बिशन लॉस, वैसा नहीं। ये लॉस किसको आएगा? जिनके पास में था ना पहले। हेलो, ये चीज को आप याद रखो। जैसे एम्बिशन लॉस फॉर फेम में सीपी आए, तो शुरू में बहू बोल के जाएंगी, अच्छी बोलती ना कि मैं शुरू में गई, सबका सुनी कि बाबा मेरे घर वालों का नाम निकले, लेकिन देखिए ये सुधरने वाले हैं नहीं, तो फिर वो आर्सेनिक और कालिका सेपिया का ये होता है कि मैंने शुरू में अपने भाई घर वालों का नाम निकलना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके लिए मैंने सबका सुन लिया। अब नहीं सुनती मैं भी, क्या फायदा है इनको बोल बोल के, इनको 4 बच्चे दो, इनका घर का करो, बच्चों का करो, सबका करो, तभी भी ये अपने को ढंग से रहते नहीं, तो क्यों फिर बड़बड़ करती नहीं, फिर आर्सेनिक का भी वही बड़बड़ करते रहेगा। इसका वो है, पहले पैसे का फिक्र कर करके फिर बाद में ये लोग चले जाते हैं। मतलब दे हैव द एम्बिशन टू मेक मनी, दे हैड, बट नॉट दैट एम्बिशन की जिसके लिए वो एकदम नहीं क्या नक्स वगैरह के जैसा कि पूरा अपने आप को झोंक दे और फिर जाए, वैसा नहीं होता है। ओके, आई थिंक दिस इज इट। आई हैव अपॉइंटमेंट्स, तो Thank you so much. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। See you all. Thank you so much. यस मना हाँ, ये स्क्रीन बंद कर। क्या बोला मैडम? मानसी हो मैडम सर। बोला अच्छा, स्क्रीन मोटा ही अंतर बोलना बाकी। Thank you so much, Arwa madam. It was a nice learning of Kali Kav. Or thank you, Liaquat sir, for your insight into Kali Kav. And you really differentiated very well the close coming remedies, so that whenever we are taking a case, we can narrow down to such remedies, and then we can finalize the remedy. So thank you so much, sir. Thank you, my team PHF, and thank you everyone for joining. Thank you. Thank you very much, guys. One more thing I want to tell you is Dr. Arwa madam has, it's a first lecture online. With so much of confidence, she delivered it. I am so proud of her. She's one of my closest friends since 1990. Okay, we had a group of 7 girls and 3 boys. So we are that close. We were the closest. Yeah, closest. And thank Mansi you. madam Thank must you have told you that she in was in fact, Abu I Dhabi. should thank you for giving me this platform to present. I am here, myself. Arwa. I am here to give platform to everybody. You are, of course, my darling friend, no doubt about that. But I am appealing through this medium. जिनको भी किसी को भी anybody wants to take lecture, join us, be with us. I am here to give you stage. Okay. Previously, I used to take offline seminars. We must have taken like 300, 400 seminars and 100, at least 100 conferences of 3 days we have taken. So I have given exposure to so many of the teachers, so many of the doctors. You can see them in a lot of groups like, okay, जितने भी ग्रुप्स में तुमको मिलेंगे, ज्यादातर हमारे स्टूडेंट मिलेंगे। हमने we have trained them, okay, and we are with them, we groom them, we train them. So if you all want to really come, हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास रहो फिर ये मत करो। Come, grow with us, enjoy, fly. Come with us, we'll train you. Okay, thank you. God bless. Bye Thank bye. you so much. It was Bye, pleasure. Thank you. Bye bye. Same here. Bye Same bye. here. Bye.